Rahim. Welcome back to lecture number 11 for Global Business Management, and this is the continuation of a previous chapter, that is chapter number 5, and we were discussing absolute advantage within the category of international free trade. Let's try to understand the comparative advantage kya hai and how it works, and we will carry the example of Ghana, which is producing cocoa, and South Korea, which is producing rice. तो अब एक दूसरी assumption, पिछला जो lecture हमने close किया था, that was absolute advantage के हवाले से, and now we will try to understand कि comparative advantage कैसे काम कर सकता है. So 1870 में Rector ने propose किया कि what happens when one country has an absolute advantage in the production of our goods. So Record's theory of comparative advantage: a country should specialize in the production of those goods that it produce most efficiently and buy the goods that it produce less efficiently from other countries, even if this means buying goods from other countries that it can produce more efficiently. So let's assume Ghana is more efficient in the production of both cocoa and rice. In Ghana, it takes 10 resources to produce 1 ton of cocoa and 13 or 1/3 resources to produce 1 ton of rice. So Ghana can either produce 20 tons of cocoa and no rice, or it can choose to produce 15 tons of rice and no cocoa, or the third option it can avail is the combination of the two, that is दोनों commodities को वो मुख्तलिफ quantities में produce कर सकता है. Whereas in South Korea it takes 40 resources to produce 1 ton of cocoa and 20 resources to produce 1 ton of rice. So South Korea could produce 5 tons of cocoa and no rice, or 10 tons of rice and no cocoa, or some combination of the two commodities. So if each country specializes in the production of a good in which it has a comparative advantage and trade for the other, both countries will gain from this practice. So with reference to comparative advantage, if trade is executed between Ghana and South Korea, what will be the outcomes? So Ghana could produce 4 tons of cocoa to South Korea in exchange for 4 tons of rice, or Ghana still have 11 tons of cocoa and 4 additional tons of rice. South Korea still have 6 tons of rice and 4 tons of cocoa. तो इसमें दोनों में कंपैरेटिव में फ़र्क क्या आ जाता है कि आप भले चीज़ बना सकते हैं, बना रहे हैं, तो आप जो चीज़ बना रहे हो उसको भी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट कर सकते हैं. So what is the gain from trade? The theory of comparative advantage, that is trade is a positive sum game. आपको याद होगा एडम स्मिथ ने कहा था कि इट्स जीरो सम गेम, जहाँ पे एक मुल्क को फायदा है दूसरे को नुकसान है. बट एज with reference to comparative advantage, trade is not a zero sum game, but it's a positive sum game in which all the related countries who are involved in trade will benefit. So potential world production is greater, and it is unrestricted or with limited restrictions free trade than it is with restricted trades, and it provides a strong rationale for encouraging free trade. So comparative advantage can be a greater justification for free trade to be executed within the member countries who are engaged in trade. Now let's try to develop a hypothesis based on some assumptions and qualifications. What will be the advantages of comparative advantage? Supposedly only 2 countries and 2 goods are involved for this case to understand, and supposedly there is no transportation cost with reference to finished products and factors of production within the 2 countries, and similar price and value is existing within these 2 countries, and resources are mobile. What is the understanding with reference to resources are mobile? It means that resources are not restricted within the borders, within the countries, but not across the countries, and constant return to scale is there, and fixed stock of resources are available to both countries. No effect on
income distribution within the countries exist. It means that Ghana के अंदर across the Ghana there is similar income distribution, and same is the case with South Korea. Based on these assumption and qualification, now let's try to understand कि comparative advantage कैसे benefit कर सकता है. Now let's try to understand. Suppose the following assumptions are relaxed. Resources move freely from the production of goods to another country within a country. There are constant returns to the scale, and the trade does not change a country's stock of resources. The stock of resources is your factors of production, which includes but not limited to your land, labor, capital, technological advancements, or the efficiency with which these resources are utilized within the borders of a country. So immobile resources कौन से हैं जी? Resources do not always move freely from one economic activity to another. अगर आपने किसी एक फैक्ट्री में, किसी एक प्रोडक्शन प्लांट में कुछ लोग इंगेज किए हुए हैं, तो जब तक अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे काम पूरा नहीं हो सकता, आप उनको किसी दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते. So government may help retain displaced workers. Now displaced workers are the one, ये जो हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में से. जब मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करता हूँ तो दिस प्रॉब्लम इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान बट सब कॉन्टिनेंट में ये ज़्यादा चल रहा है. ब्रेन ड्रेन है, स्किल्ड वर्कर यहाँ पे नहीं रुकता. तो एज पर द कंपैरेटिव एडवांटेज अंडरस्टैंडिंग, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो दो लोग दूसरे मालिक में जाना चाह रहे हैं, जो स्किल्ड है, ट्रेन्ड है, एक्सपीरियंसड है, उनको अपने मुल्क में रोके और उनकी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करने की कोशिश करें. एंड दूसरी जो एक एक्सटेंशन है, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स. दैट इज द सिंपल मॉडल assume constant returns to the specialization. Now, what if we mean by constant returns to the specialization? That is, the unit of resources required to produce a goods are assumed to remain constant. वो वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होंगे. आपके फैक्टर प्रोडक्शन, इनपुट फॉर और फिनिश प्रोडक्ट्स वो कंसिस्टेंट रहेंगे, वो फ्लक्चुएट नहीं करेंगे. But an assumption of diminishing return is more realistic, since not all resources are the same quality and different goods use different resources in different proportions. तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन है कि जहाँ के आपके रिसोर्सेज ही चेंज ना करें. Ideally, same resources can be utilized to produce different products and services. अब इसका डायनामिक इफेक्ट क्या है जी कंपैरेटिव एडवांटेज का विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ? दैट इज ट्रेड माइट इंक्रीज अ कंट्री स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज as increased supplies become available from abroad. अभी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली शॉर्टेज ऑफ बेसिक नेसेसिटीज हो गई है, जिसके अंदर स्टेपल में आप बात करें तो गंदम की शॉर्टेज है राइट नाउ, एंड शुगर की है. तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्पोर्ट दीज टू कमोडिटीज टू प्रोवाइड रिलीफ टू द मैसेस. बट सपोजली लेट्स से कि पाकिस्तान के पास ये शॉर्टेज नहीं है, वी हैव सरप्लस ऑफ दीज टू कमोडिटीज, एंड येट अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारा जो स्टॉक है उसको ऑफ कोर्स सरप्लस में लेके जाएगा. सो फ्री ट्रेड माइट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड फ्री अप रिसोर्सेज फॉर अदर यूजेस. तो ये इसका एक डायनामिक इम्पैक्ट है. Samuel critique क्या था जी? डायनामिक गेन्स कैन लीड टू लेस बेनिफिशियल आउटकम्स. अभी आपके पास अगर सरप्लस है, पहले ही आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपके पास स्टॉक्स हैं और आपके मुल्क में सरप्लस आप और इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं करेगा एज अ प्रोड्यूसर, एज ए मैन्युफैक्चरर. तो यू विल ट्राई टू रेजिस्ट दैट सरप्लस के वो आपके मुल्क में यूज़ करें. डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई को इंश्योर करें, दैट इज़ विन विन सिचुएशन. लेकिन अगर कोई कमोडिटी सरप्लस में हो जाती है तो ऑफ कोर्स उसकी जो प्राइस है वो फिर रिड्यूस होगी और लॉस में जाएगा आपका प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर. The link between trade and growth कैसे exist करता है जी? Countries that adopt a more open stance towards international trade enjoy higher growth rates than those that closes their economies to trade. तो 48 में अगर चाइना इंडिपेंडेंस गेन करता है और 62 तक उसके बॉर्डर्स क्लोज हैं, तो वो
इट डजंट मीन कि वो इन्फ्लुएंस फॉरेन इन्फ्लुएंस से बचा हुआ है, यस बचा हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो दूसरे ममालिक के साथ इंटरेक्ट कर सके, ट्रेड कर सके। और फॉर दैट मैटर अभी हमारे पास नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल है जो इसी तरह बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं एंड दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये उसकी एक सिचुएशन आ सकती है। हायर ग्रोथ रेट राइज इनकम लेवल एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द masses ऑफ अ कंट्री। Now let's try to identify कि Euler theory क्या थी जी। Comparative advantage arises from differences in national endowment. नेशनल या फैक्टर एंडोमेंट क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इन्हेंस करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट कितनी एफर्ट कर रही है। तो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज क्या हैं? अगेन योर लैंड है, लेबर है और कैपिटल। कैपिटल इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये अगले चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे फ्लो ऑफ एफडीआई कैसे काम करता है। सो द मोर अबंडेंट अ फैक्टर द लोअर इट्स कॉस्ट विल बी। अब हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल में जो सेमी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड लेबर है वो अबंडेंस में है, तो ऑफ कोर्स उसकी फिर कोशिश होती है कि यहाँ पे तो सिंस उसको स्किल्स के हिसाब से नहीं इनकम हो रही, तो दे ट्राई टू मूव टू द कंट्रीज के जहाँ पे ये लेबर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आप देखते हो कि हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो अरब रीजन में ज़्यादातर जो है वो सेमी और नॉन स्किल्ड लेबर वहाँ पे जा रही है। और जो आपका ब्रेन ड्रेन विद रेफरेंस टू हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स है, दे मूव टुवर्ड्स मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. So countries will export goods that make intensive use of the factors that are locally abundant and import goods that make intense use of factors that are locally scarce or limited. Now, Lentoff paradox is understanding is कि वो ममालिक जहाँ पे capital FDI is readily available, तो वो ममालिक जहाँ पे पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है वो बजाय प्रोडक्शन के सर्विसेज को ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे. That was the assumption of Lentoff paradox. But in reality, when he studied the US market, so he came to know that however the US exports were less capital intensive than US imports. कैपिटल होने के होते हुए भी जो मेजर एक्सपोर्ट्स थी अमेरिका की, दे वर टेंजिबल इन नेचर. वो प्रोडक्ट्स थी, वो सर्विसेज थी, इन्वेस्टमेंट नहीं थी दूसरे ममालिक में. तो उसकी प्रोबेबल जो एक्सप्लेनेशंस आइडेंटिफाई की गई थी, दैट वाज स्पेशल एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स मेड विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दैट आर लेस कैपिटल इंटेंसिव. तो उनके पास अमेरिकन मार्केट के पास एडवांटेज था इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का, तो वो जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स में ट्रांसलेट होता गया. एंड देन दिस डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी लेड टू डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी when the drive trade patterns were identified. So Lentoff paradox की अंडरस्टैंडिंग है कि वो मालिक जहाँ पे इन्वेस्टमेंट या कैपिटल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इज योर फाइनेंस, तो अगर आप फाइनेंस हैं तो आप ज़्यादातर फाइनेंस ओरिएंटेड ही एक्सपोर्ट्स करेंगे. दैट वाज द Lentoff paradox, उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई. बट इन रियलिटी जब उसने स्टडी की यूएस मार्केट, तो ही केम टू नो कि अमेरिका के पास एक्सटेंसिव कैपिटल होते हुए भी अमेरिकन इकोनॉमी वाज एक्सपोर्टिंग tangible products ज़्यादा कर रही थी as compared to investment in other countries. So wherein an other aspect अभी तक जो हमने cover किया, that is your absolute advantage, comparative advantage, and third जो component है इस chapter का, that is product life cycle stage. So let me give you another brief introduction about product life stage. क्या होता है जी? We have more or less 5 or 6 stages in a product. सबसे पहला R&D है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज है. अगर आप फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स में डील कर रहे हैं तो नॉर्मली 5 से 10 साल का अरसा बहुत कॉमन है किसी एक ड्रग को R&D करने में, और उसके बाद वो मार्केट में आती है, इंट्रोड्यूस होती है. आफ्टर इंट्रोडक्शन वो मेच्योरिटी पकड़ती है और ग्रोथ की तरफ जाती है, ग्रो करना शुरू करती है. ग्रोथ के बाद वो मेच्योरिटी लेवल पे जाती है. That is the peak of pinnacle of that product जो अपनी मार्केट में अचीव करती है. And with the passage of time, it's natural understanding कि वो mature product will start declining in acceptance, in buyage, in usage.
तो जब वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी एंड लास्ट स्टेज है कि आप आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे या वो प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट हो जाएगी। तो ये 5 स्टेजेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हैं। अब हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से अगर आप अमेरिकन मार्केट को स्टडी करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एज प्रोडक्ट्स मैच्योर both the location of sales and the optimal production location will change affecting the flow and direction of trade। तो अगर एक मार्केट में आपके प्रोडक्ट सैचुरेट हो गई है तो आप उसको ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप उसको और उसकी लाइफ और एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। आप नई मार्केट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, आप अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को मूव करने की कोशिश करेंगे, आप उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। द वेल्थ एंड साइज ऑफ यूएस मार्केट गिव अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू यूएस फर्म्स टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। In the early stages of a product life cycle, demand may grow in the US, but demand in other advanced countries is limited to high income groups। अब इसको आसान जुबान में समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पे अभी जो एप्पल ने फ़ोन इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज़ आईफोन आई बिलीव 12 प्रो। तो अब ये अमेरिकन मार्केट में तो उनकी रीच में है, मेजॉरिटी उसको बाय कर लेगी, लेकिन पाकिस्तान में जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं they are the one who are going to afford that product with the passage of time। जब और इसके मॉडल्स आएंगे 6 महीने साल बाद ऑफ कोर्स इसकी प्राइस नीचे आएगी, बट स्टिल प्राइस नीचे आने के बाद भी वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की रेंज में नहीं होगी। इट इज़ नॉट वर्थवहाइल फॉर फर्म इन दोज कंट्रीज टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट, but it does necessitate some exports from the US to those countries। So over time, demand for the new product starts to grow in other advanced countries, making it worthwhile for foreign producers to begin producing for their home markets। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ पे भी एक्सेस आ रही है थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट बूम। अब यहाँ का पाकिस्तानी जो कंज्यूमर है वो भी एजुकेट हो रहा है about product offerings, about different options जो available हैं। तो now people starts demanding the products। तो अब एक सूरत क्या है कि वो जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे पाकिस्तान में उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे और लोकल प्रोड्यूसर उसी प्रोडक्ट को यहाँ पे थ्रू प्रॉपर लाइसेंसिंग बनाना शुरू कर दे। So firms might also set up production facilities in those advanced countries where demand is growing for their product in question। As the market in the US and other advanced nations mature, the product become more standardized and price become the main competitive weapon to grab the maximum market share for a country or firm। So producers based in advanced countries where labor costs are low than the US might now be able to export to the US। If cost pressures become intensive, developing countries begin to acquire a production advantage over advanced countries। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूएस में ज़्यादा हो जाएगी तो आपने देखा होगा कि बड़ा बूम आ गया था चाइनीज़ मार्केट में। साउथ कोरिया चाइना में लगा रहा था प्लांट, सैमसंग वाले, एप्पल वाले। एप्पल की प्रोडक्ट आप देखो दैट वाज डिजाइंड इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना, वो आपको हर प्रोडक्ट पे ऑलमोस्ट मिल जाएगा। तो वो जो आउटसोर्सिंग थी या प्रोडक्शन यूनिट्स थे वो उस लोकेलिटी की तरफ मूव कर जाते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर में पाकिस्तान की ज़्यादादारी रही है, बट फिर उसके अंदर बांग्लादेश ने एडवांटेज ले लिया। तो इस वक्त आपको ज़्यादा जो टेक्सटाइल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बांग्लादेश में मिलती हैं। Now let's try to understand कि हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे आप कैसे उसको evaluate कर सकते हैं। While the product life cycle theory accurately explains what has happened for products like photocopier or Xerox machines and a number of other high technology products developed in US in 1960s and 70s, increasing globalization and integration of world economy has made this theory less valid in today's world। So today, many new products are initially produced in Japan or Europe or are introduced simultaneously in US, Japan and Europe। I will recommend you one website। आप IPO office जाके सर्च कीजिएगा, that is Intellectual Property Organization, जिनीवा, स्विट्जरलैंड। और वहाँ से आपने चेक करना है Big 5 के नाम से। You will find an article or category
बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर नॉर्मली अब जो है अंडरस्टैंडिंग है कि इकोनॉमीज मूव कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज क्रिएशन इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो पहले एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी। तो नॉलेज इकोनॉमी क्या है जी? दैट इज इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू मेथड्स, न्यू प्रोसेसेस, न्यू टूल्स, जिनको पेटेंट किया जाता है, कॉपीराइट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, और फिर उसकी रॉयल्टी की बेस पे इकोनॉमीज। तो वो जो बिग फाइव आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको यूएस मिलेगा, जापान मिलेगा, और यूरोप के भी कुछ ममालिक मिलेंगे। आई विल स्टॉप दिस लेक्चर हेयर। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इंटरेक्टिव सेशन में। टिल देन अल्लाह हाफिज।